To increase the relationship between the neighbors, Foreign Secretary have arrived in Bhutan amid focus on Indian neighbors. Why? Because Nepal has currently given interest of joining BRI, Bangladesh also, and recently the relationship between China and Maldives have reached a new heights. That is why Foreign Secretary have visited several countries in neighborhood region to increase the relationship between both the countries. तो एक एग्जांपल है माइंडफुलनेस सिटी गेलेफू मेगा प्रोजेक्ट. Mindfulness city, the word can be used. It is talking about integration of the urban planning and environmental conservation to the quality of lifestyle. Mindfulness city. Regarding next, early nutrition impacts the cognitive development of the children. The study have showcased that without good amount of diet, the children have less cognitive development up to 8 years of age because of developing of the less neurons in the mind, in the brain. और उससे इम्पैक्ट होगा ओवरऑल ऑन द एजुकेशनल स्किल्स एंड सोशल ईक्यू कोएफिशिएंट एक्सेट्रा, मैथ, रीडिंग, वोकैबुलरी. तभी हम लोग देखते हैं इन द प्रथम सर्वे कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट स्पेशली इन आफ्टर क्लास 8 to 14 they cannot do basic numeracy and also cannot pronounce certain words correctly. तो रीडिंग स्किल कम हो जाता है, यही कारण है. विद रिगार्डिंग टू अंडर न्यूट्रिशन, तो क्या करना चाहिए? तो ओवरऑल दो एरियाज जहाँ बात होते हैं हम लोग हमेशा लेते हैं. फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, पोषण अभियान focuses on quality of Anganwadi services and holistic development for the nutrition of women, pregnant women, mother and children. लेकिन ओवरऑल टू एरियाज पर promoting of early breastfeeding among the children for the first 2 years to prevent the wasting, stunting low height for age. Create a breast-friendly environment, breastfeeding friendly environment. Then diversifying their diet becomes crucial. Community-based complementary feeding program can be increased. Anganwadi to help Anganwadi center could be used. Preschooling can be doubled to improve the maths and language scores. I will add two more schemes. Tamil Nadu government brunch. It is a breakfast initiative by the Tamil Nadu government apart from midday meal scheme. And for that, protein intake have also been increased in the scheme so that they can get an amount of good diet at a very young age. 2 to 3 areas. Okay. DG Yatra we have taken. One scheme, Labha scheme, by the Odisha government, it talks about the state-funded minimum support (MSP) for the MFP. MFP includes lac, wild honey, tendua leaves, and other forest produces which are not regulated under WPA, which are not banned in the WPA. The tribals have the right to collect the forest produce and sell them in the market for their own purposes, not for commercial purposes. तो उसके लिए MSP 100% स्टेट फंडेड लाभा स्कीम और the initiative can be taken by the ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कोऑपरेशन लिमिटेड ऑफ ओडिशा. तो एग्जांपल ले सकते हैं लाभा. दिस इज आई थिंक माय मिस्टेक. Pros and cons of simultaneous election. The important PT fact, only 4 election in India were simultaneous. 52, 57, 62, 67. Where Lok Sabha and State Assembly election were held simultaneously. And next, Election Commission of India 1982 and Law Commission 1999. They have talked about the prospect of the simultaneous election. फायदा क्या है? इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम होगा, अभी बहुत ज्यादा है. The political party
Because every year there is some sort of election, political party is in the attitude of permanent campaigning, which is a hindrance to the policy making governance. दूसरे कारण तीसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज मोस्टली busy during the election period in conducting a free and fair election. This impact the administrative efficiency rather than focusing on policy implementation and schemes implementation. Fourth, polarization campaign by the politician during the election, apart from the social media disinformation misinformation campaign, it creates a negative atmosphere in the society. तो एक ये प्रॉब्लम हो गया. चैलेंजेस इन्वॉल्व क्या हो सकता है कि what are challenges with respect to the simultaneous election? India is a federal country. It has a provision of the state. All states have different issues to tackle. That is why each state have a different government, different political ideology, because of a different problem faced by the citizen. National political party would have a significant advantage during the simultaneous election because of the funding, electoral funding, etc. That would be detrimental to federal spirit. Effective feedback mechanism वो कम हो सकता है because every year if there is election there can be a accountability on the government to implement scheme in the more transparent objective manner. लेकिन अभी अगर एक साथ होगा तो they will wait after 4 years, they will then increase the efficiency or they will announce new scheme. The accountability will be reduced. फर्दर रिकमेंडेशन दिया गया था 2018 में मोस्ट सुटेबल अप्रोच क्या होना चाहिए. तो दो लॉ कमीशन की तरफ से है. जो बीच वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. पहला है कि हर 2.5 ईयर्स के बीच में इलेक्शन होना चाहिए. एक सेंटर का इलेक्शन हो गया, उसी साल 50% ऑफ द स्टेट्स का इलेक्शन हो गया, उसके बाद 2.5 ईयर्स के बाद बाकी 50% ऑफ स्टेट इलेक्शन होना चाहिए. ऐसे आप रिपीट करते रहे साइकिल. तो एक पहला हुआ इसका रिकमेंडेशन. सेकंड, बाई इलेक्शन अगर साल भर में कहीं पर होता है तो देयर शुड बी अ गिवन टाइम लाइन, फॉर एग्जांपल एनी पीरियड ऑफ अ टाइम in 1 year to conduct such by election, and or by election can be clubbed together. तो दो हो गया. हर जगह होता है, फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन में भी फिक्स्ड टेन्योर है, जो इंडिया में जरूरत नहीं है टेन्योर का, क्योंकि इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. आइडियल सोल्यूशन वही है कि आप लोकसभा साइकिल के अंदर में 50% ऑफ द स्टेट इलेक्शन में आप काम करें, आप इलेक्शन करें, और 50% 2.5 ईयर्स के बाद. उससे इलेक्शन भी होते रहेगा और बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड भी होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी बढ़ सकता है. एक्सपेंडिचर कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ सकता है. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में बस ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा था कि 2.5 ईयर्स का गैप. दे आर नॉट हियर, वी कैन कंटिन्यू. मानसी बीच में आप भी ले लेना इसमें. कैपिटल पुश सोलर पॉलिसी 1500 मेगावाट रूफटॉप. तो कैपिटल पुश मतलब दिल्ली गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड द पॉलिसी विद रिगार्डिंग टू द रूफटॉप प्लान. अभी सूर्योदय मिशन was initiated by the central government, but now rooftop solar policy is being implemented by the Delhi government. It is an incentive for the rooftop. उससे फायदा क्या होगा? इंडिया का पंच अमृत मिशन टारगेट पूरा हो सकता है. सेकंड, अर्बन स्फीयर में देयर इज अ urban space on the rooftop that can be utilized for production of green energy. Third would be each houses बोल सकते हैं, सोसाइटीज बोल सकते हैं, can sell the extra amount of energy to the grid, thereby reducing the cost of the energy production. तो ये तीन फायदा है. और आपको कुछ बोलना मानसी सर में? नहीं आशिक. तो कैपिटल सब्सिडी, नेट मीटर भी इंस्टॉल which will keep tab on the unit generated और फिर उसको सेल कर सकते. हाँ, कार्बन एक्स्ट्रा पावर कैन न्यूट्रलिटी में प्रोड्यूस. भी हेल्प करेगा. Flight delay and cancellation common sight in during the fog condition. AXA, Air India, SpiceJet, Indigo, average cancellation.
Prime Minister says economy likely to grow closer to 7% in 2024-2025. 7%. India will become the third largest country. तो what can be done? Question यहाँ उठता है. तो structural reform since 2014 have strengthened the macroeconomic fundamentals. Structural reform is taxation collection, faceless mechanism, e-way bill, GST, demonetization after demonetization, then land acquisition policy, IBC, फिर PMLA का स्ट्रेंथन होना, स्ट्रक्चर रिफॉर्म, सिक्योरिटी में भी स्ट्रक्चर रिफॉर्म. तो इट इज फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, वो भी किया गया था. बैंकिंग के अंदर में भी बैंक ब्यूरो बोर्ड का गठन किया गया था फॉर मैनेजिंग द बैड लोन्स द बैंक्स. तो अभी स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो जो आप हम्म ऐड करो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो आपने ऐड कर दिए। मैं यहाँ बोल रही थी कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या फेस किए थे आफ्टर स्पेसिफिकली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। तो क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं था जो हम देखते हैं अब गति शक्ति पॉलिसी प्रोजेक्ट के पैरिस. अंदर। हाँ, तो बात इल है. टारगेटेड सब्सिडीज थी which crammed the fiscal space for the public investment। तो दैट इज बीन इम्प्रूव जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन की बात करते हैं एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स की बात करते हैं, तो रैशनलाइजेशन उसके थ्रू हो रहा है। या हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं एंड लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, तो इस पे वी आर स्टिल वर्किंग अपॉन। ये आज के टाइम में भी एक सबसे बड़ा चैलेंज हम बोल सकते हैं। सो दीज वर दी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। एंड यहाँ पे ये दो अभी फेजेस भी में कुछ डिवाइड कुछ है किया है, ठीक है। आई थिंक. हाँ, इसको दो तीन अभी फेज में। जगह पर है. ठीक है, बोलो। नहीं आप बोलो. मैं बोला दो बचा है अभी भी स्ट्रक्चर रिफॉर्म, स्पेशली इन एग्रीकल्चर, जो भी हुआ नहीं. 2020 में आने वाला था, वहां पे नहीं हुआ. लेबर कोड में भी शायद पूरे अच्छे से नहीं हुआ स्ट्रक्चर रिफॉर्म. बाकी ये सब जगह तो हुआ ही है फाइनेंस वाला में. आप और बता दो. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, जो आपने बोला, ठीक है, लेबर कोड हो गया। और यहाँ पे एक जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, ऑल्दो यहाँ नंबर नहीं मेंशन्ड है, बट जो 1 यूनिट ऑफ ग्रोथ या 1 यूनिट ऑफ जीडीपी ग्रोथ हो रहा था, दैट वाज that has now turned out to be qualitatively more superior in terms of, we can talk about the tax to GDP ratio। दैट इज वन थिंग। एंड यहाँ पे जैसे इसको इस सेंस में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1% जीडीपी ग्रोथ होने के बाद कितना परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गए। या कितना परसेंट पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ, कितना इक्विटेबली वो इंक्रीज हुआ है, वो हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे दो फेजेस में डिवाइड किया जा रहा है, 1950 से 2014, इसको हम दो में ब्रेक कर सकते हैं, 1950 टू 1991, उसके बाद 1991 टू 2014, एंड देन 2014 टू 2024। तो इस तरीके से वी कैन इंटरप्रेट दिस। और यहाँ पे की फ्रेज भी है, डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ, लास्ट 2014 हम्म. टू 2024, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ। ठीक है। हम्म. Uttarakhand tourism policy, which we can use in the disaster management, because Uttarakhand have faced several issues such as land subsidence, Chamoli district, then flash flood, आउटब्रेक ऑफ द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, जो GL होता है, वो भी देखा गया उत्तराखंड में. उत्तराखंड फ्लड 2013, लैंडस्लाइड दिखते हैं. तो ऐसा पॉलिसी होना चाहिए उत्तराखंड टूरिज्म पॉलिसी में कि देयर विल बी अ लेस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. और सस्टेनेबिलिटी फोकस होना चाहिए. विद स्ट्रॉन्ग फोकस सस्टेनेबिलिटी, द पॉलिसी इज टू इम्पोर्टेंस गिवन टू द प्रिजर्विंग द उत्तराखंड इन्वायरमेंटल एंड कल्चर एसेट. इको टूरिज्म हो गए, या फिर एक वर्ड था ना मानसी, विद रिस्पेक्ट टू द हाउस, ये पूछ रहे थे सर एक बार. 4,000 के अराउंड थे टूरिज्म स्पेसिफिक. मैं भी रिकॉल होम कर स्टे पा रही होम हूँ। स्टे होम स्टे हाँ, होम स्टेज। तो 4,000 home stay have been promoted. It reduces the cost of construction of the hotels. That is why home stay is promoted. तो ये हो गया बात. Sustainable form of infrastructure can be used, such as use of wood rather than concretization of the pristine environment of the Uttarakhand. और एक इनर लाइन परमिट जैसे अरुणाचल प्रदेश में करते हैं, वैसे ही एक फॉर्म ऑफ पॉलिसी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रिस्टीन इन्वायरमेंट जो हिली एरियाज है वहां पर.
So we have taken this one, solar policy, Delhi government. Uttarakhand has banned the single-use plastic after 2022. उसके बाद से हुआ. यहाँ पे हम टर्म्स लिख सकते हैं, जैसे सिंगल यूज बैग जो थे मेड ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन, मतलब डायरेक्ट ये टर्म्स यूज कर सकते हैं द आंसर्स: थर्मोकोल, पॉलीस्टाइरीन, स्टायरीन, Styrofoam. पॉलीयूरेथेन, स्टायरोफोम. Production, purchases, sale, import, storage, use and supply have been banned. Okay. Hmm. MSME policy 2015. Yes. How Goa is trying to increase their investment in the state. First of all, वहाँ पर बात होता है कि investors hub, or there is a talk going on between the business class as a commercial class और जो state government है from investing in green industries, फिर food processing, pharmaceutical, biotechnology, electronics manufacturing. तो कहाँ पे हुआ? तो इन्वेस्टमेंट गोवा 2024 इन्वेस्टमेंट. सो गोवा को जैसे ये बोल रहे कि लॉजिस्टिक्स हब डेवलप करने की बात की जा रही है, तो गोवा इज क्लोज टू JNPT पोर्ट आल्सो, व्हिच इज इन महाराष्ट्र स्टेट. हाँ. तो वहां यस. से भी उसको जो बेनिफिट्स हो सकते हैं किनसे, कि सैटेलाइट लॉजिस्टिक्स हब एक तरीके से डेवलप हो सकता है गोवा. यस, कर ही सकते. यू हैव टेकन दिस वन. यस. इंपॉर्टेंट बस था सिंगापुर युमामी मीट फर्स्ट. एक और एक था कि इसमें लिखा हुआ था कि फायदा क्या है हाँ, ये कवर कर लिया. इसका. गलत है. लैब ग्रोन फिश फायदा इसमें एक माइक्रोप्लास्टिक नो कांटेक्ट, हेवी मेटल इसका नहीं होता इसमें. एंटीबायोटिक्स जो हम्म. अगेन हम्म. बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन होता है, वो हाँ, वो भी चैलेंज नहीं. होता है. नीड टू क्रिएट जॉब्स, स्वीटन न्यू regime फॉर पर्सनल IT. तो इज टॉकिंग अबाउट द बजट दैट विल बी प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट. तो उसमें नीड टू क्रिएट जॉब्स एंड स्वीटन न्यू regime, पर्सनल IT टैक्स के जो स्लैब्स है उसमें चेंजेस आना चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं. तो इंडिया में टैक्सेशन वो प्रोग्रेसिव है, बस याद रखना. ठीक है, तो रिपीटेड है इसमें, बाकी रिपीटेड. सभी ये भी ये ले भी ले. चुके हैं ना. हम्म. ये भी ले चुके हम बोल्ट. एक निभा. अच्छा था हम. ये एग्जाम्पल, कि हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होगा वो ट्रॉपिक रीजन में रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं. हम्म. हम बोल्ट एंड में बात करते हैं कि थोड़ा ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकता है ट्रॉपिक रीजन से. हिमालयन रीजन में भी है इंडिया में अगर बोला जाए तो. सुंडा लैंड हो गया तो. ईज ऑफ इन्वेस्टिंग का है, सेग्रीगेशन की बात की जा रही है. प्रॉपर्टी एंड रिटेल ट्रेड्स, सेटलमेंट क्या कल है? सेबी से रिलेटेड एक पढ़े थे जिसमें बोला गया था सेबी हैव कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द एफपीआई. कल हुआ था ये चीज. वी हैव टेकन क्या, अप. एक बार फिर रिपीट करोगे? इट हैज डिस्क्लोज कॉल्ड करने के फॉर. लिए. कॉल हम्म. फॉर हाँ, डिस्क्लोजर एफपीआई डिस्क्लोजिंग के जो भी एफपीआई. अकाउंट है उसका डिस्क्लोजिंग करने के लिए, ताकि हम्म. जो कैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो रहा है वो पता लग सके. तो ये दो डिफरेंट है उससे. चेक द मिसयूज ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रेडिंग, मतलब इसका when financial firm trades on the stock exchanges using its own fund with aim to gain profit. प्रोपराइटरी मतलब कि एक्चुअली जो ओनर है दे आर ट्रेडिंग प्रोपराइटरी, या हम इसको बोल सकते हैं जो प्रमोटर टर्म हम यूज करते हैं, जैसे कंपनीज के प्रमोटर्स कौन है, एक्चुअल जो फाउंडेशन या जो CEO हम बोल सकते हैं. तो दैट इज प्रॉप ट्रेडिंग बोला जा रहा है. तो उसको सेटलमेंट की यहाँ जिस बात हो रही है कि रिटेल ट्रेडर जो वी एज इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं उनका अलग से सेटलमेंट हो, एंड प्रॉप ट्रेड्स का अलग से, बिकॉज दैट इज हाई इन वैल्यू ऑल्सो. जो वो कैपिटल भी यूज करते हैं दैट इज क्वाइट ह्यूज. Okay. ICR budget set to rise amid the focus on the food production. ICR is Indian Council of Agriculture Research. It is talking about the sustainable agriculture practices to address the issue faced of
address the issue of the climate change impact in India. तो इंडिया में बोला जाता है कि ICR बजट constitute about 8% of the agriculture ministry outlay. That is focusing on R&D is very less in India. 8% है सिर्फ रिसर्च के लिए, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए. 77% जो जाता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर बजट, इट गोज टूवर्ड्स द 3 स्कीम: कैश ट्रांसफर, PM किसान, PM FBY एक्सेट्रा, इंटरेस्ट सब्सिडी इसी का, एंड क्रॉप इंश्योरेंस. 77% एक्सपेंडिचर इसमें आते हैं और सिर्फ 8% रिसर्च में. ICR contribution with respect to the food security: high yielding crops, climate resilient agriculture, suitable farming practices, biofortification, increase of high value product in horticulture, fisheries के लिए बात होता है. Using the crop science, research is providing the specific high yielding field crop varieties that is tolerant to pest and disease. इसलिए बात हो रहा है कि there should be increase in the budget outlay of the ICAR. Agriculture R&D is important so that the agriculture sector in India is more robust to the changes in the global geopolitics. जैसे अब ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है पाम ऑयल में, या फिर सोयाबीन ऑयल फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राजील, पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया, एंड सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन, रशिया, उसे कम करना पड़े. आप इन्वेस्ट करें इंडिया में पाम ऑयल ग्रोथ, सेल्फ सफिशिएंट द पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, बाकी सब में, तभी हो सकता है जब देयर इज अ रिसर्च के लिए बजट होना चाहिए. दैट इज वाई इट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन द बजट एक्सपेंडिचर. तो डेटा जो ओवरऑल डेटा इसमें एक ही है कि 8% ओनली एक्सपेंडेड expenditure is 8% on the agriculture R&D, whereas 77% goes to the 3 schemes revenue expenditure एक तरह से. बजट में बूस्ट फंड फॉर द रेलवे पावर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Last year, the budget has increased the allocation of railways 2,25,30,000 crores. It was very high, and there was a rationalization of the schemes. Manrega expenditure was slightly reduced. Food subsidy, urea subsidy was reduced last year. इस साल में यहाँ बोला पे जा रहा है there will be an increased capex expenditure. बोलो. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इंडियन रेलवेज के बारे में यही है कि जो इंक्रीज देखा गया गवर्नमेंट के पार्ट पे ऑन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेलवे सेक्टर को बोरोइंग ही नहीं करनी पड़ती है मार्केट से. देयर इज लाइक जीरो बोरोइंग ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन रेलवेज. Yes. तो how we are increasing in the field of the capex expenditure? तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी, और एक पीटी क्वेश्चन भी था, गति शक्ति यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यस. ये होता है. हाँ, सर, ये तो इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको बढ़ाया जा रहा है. देन वंदे भारत. इंडिजिनाइजेशन ऑफ ट्रेन, हाँ, वंदे भारत ट्रेन्स. यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग इन द IRCTC, और ग्रीवांसेस मैकेनिज्म टू रिड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ द पैसेंजर्स, उसके लिए भी ई टिकटिंग प्रोविजन किया जा रहा है. टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन दिया जा रहा है कवच के थ्रू. तो ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द रेलवेज. You have taken up this one. Budget likely to give momentum to the India's energy transition pledge. Currently in India, renewable source of energy सबसे ज्यादा अगर बोला जाए, it is in सोलर. 74. तो सोलर और विंड के, हाइड्रो के आसपास ही है, 74-75 आई थिंक. लास्ट में न्यूक्लियर है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में 6.8 गीगावाट. तो लॉन्ग टर्म टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2030, जिसमें 50% आना चाहिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से.
50 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years, तभी जाकर के इंडिया का जो एनडीसी है, नेशनल डिमांड कंट्रीब्यूशन, एंड ऑल्सो द टारगेट सेट बाय द पेरिस क्लाइमेट, वो अचीव हो सकते हैं। इन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो इट इज नॉट 24/7, चाहे विंड रहे चाहे सोलर रहे, एक्सेप्ट न्यूक्लियर। तो देर इज नीड फॉर द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दैट शुड ऑल्सो बी सस्टेनेबल। तो उसमें कल ही बात की विद रिस्पेक्ट टू द बैटरी स्टोरेज, तो लिथियम आयन, लिक्विड और सॉलिड स्टेट लिथियम आयन की बात की, डिफरेंसेस क्या है और कौन से बेहतर है। सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बेहतर है, उसमें प्रमोट हो रहा है। और दूसरे टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल और भी डिस्कस किए थे लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जाम्पल सैंड, हीटिंग ऑफ द सैंड, या फिर लिफ्ट बैटरी सिस्टम दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन यूएस। क्या आप सुबह में आप यूज करोगे सोलर एनर्जी फॉर लिफ्टिंग ऑफ द वाटर टू द हायर टेरेन, और रात में वाटर, जब वाटर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द नाइट, जैसे डैम होते हैं। बहुत साफ नहीं दिख रहा। हाँ, अदर स्कीम सच एज PLI फॉर द एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फॉर द इंपोर्टेड सेल एंड सप्लाई चेन component. E-mobility, battery storing station storage would result in reduction in overall system cost immediately. और कुछ ऐड करना है मानसी आपको? नहीं, Ashik, you can move forward. आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। तो ओवरऑल ये आर्टिकल में बात हो रहा है विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, बैटरी टेक्नोलॉजी, देन PLI स्कीम, ई मोबिलिटी, कीवर्ड ग्रीन बॉन्ड। यूनियन बजट में प्रपोज इशूइंग ऑफ द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एटलीस्ट 20,000 crore फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रमोशन के लिए बात हो सकता है बजट में। यहाँ पे वी कैन से कि इवन विंड एनर्जी जो है, जो बैरन लैंड है, उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी तो जो गवर्नमेंट की स्कीम भी, एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, सो देयर आल्सो इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। यस, एक क्वेश्चन मैं पूछना है, इसमें लिखा VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग, एग्जैक्टली अगर सिंपल में बता दो कि इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ एग्जैक्टली तो मेरे को क्लैरिटी नहीं है। वायबिलिटी गैप फंडिंग देखना पड़ेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से, मतलब जहां तक मुझे पता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो टारगेटेड है और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो बीच का जो गैप है ना, उसको आप गवर्नमेंट फुलफिल करते हैं, आई थिंक उसको VGF बोलते हैं। देख लेता हूँ। इस टाइम वायबिलिटी गैप फंडिंग, अ स्कीम दैट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट लैक फाइनेंशियल वायबिलिटी। प्राइवेट हाँ, सेक्टर को ठीक। मिलता है थ्रू कॉम्पिटिटिव बीडिंग। हम्म और मतलब वायबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट हाँ, वो और फंडिंग, डेवलपर्स रेवेन्यू फ्रॉम टैरिफ। तो वहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर्स एक्टिव रोल। हाँ, वहां पर 60% दिया जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, 30% मैक्स विल बी गिवन बाय द सेंटर एंड स्टेट। इन सोर्सेस सेक्टर, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, डिपेंड करता है, हर एक सेक्टर में डिपेंड। VGF, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड्स VGF। PPP के एक मॉडल है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए इंडिया में, जहां पर प्राइवेट बॉडीज जनरली डू नॉट स्पेंड, वहां पर VGF यूज किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड नहीं, मतलब इकोनॉमिकली जस्टिफाइड करना है उसको लेकिन फाइनेंशियली वायबल नहीं, मतलब वहां पर। इनिशियली वायबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए। इट इज गोइंग टू इसलिए टेक टाइम इन ऑर्डर टू गवर्नमेंट जनरेट। सपोर्ट इज देयर, दैट इज वाई हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द ग्रीन एनर्जी। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको वापस रिटर्न नहीं मिले, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट जरूरी है, तो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो और दो इम्पोर्टेंट। इंडिया में अगर हम कंपनीज की बात करते हैं जो विंड एनर्जी में स्पेसिफिकली वर्क कर रही है, तो वन इज सुजलॉन एंड सेकंड वन वी कैन से इंडो विंड। दो ओके, मेजर कंपनीज। ओके, वी हैव फिनिश्ड। Okay, thank you everyone. We will take up next set of important and
crucial articles to discuss tomorrow. Do it into आंसर कर